Hello, my dear students. This is the video in which I'm going to explain the continuation of the compound interest. In earlier video, I told you about all the formulae which you will use in this compound interest and some questions also. सबसे पहले आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अपडेटेड है एंड द चैनल इज स्टडी ब्राइट। जो भी देख रहे हैं अगर उनको ये कंटेंट, इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो देन यू सब्सक्राइब, इट विल बी बेटर फॉर यू बिकॉज you will get the notification. Subscribe and like, then you will get notification when I upload the video. तो ज्यादातर वीडियोस हमारे आपके फ्यूचर कैरियर, कंपटीशन, मैथमेटिक्स, स्पेशली बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स रहते हैं, इसलिए आप लोगों को ज्यादा नॉलेज मिलेगी एंड इट इज स्पेशली फॉर क्लास 9th ऑनवर्ड्स, 9, 10, 11, 12. So in playlist you can see there are the number of videos and you can take the help of them. So the channel is Study Bright. Now come to the point, that is compound interest. I am using this book, that is Understanding ICSE Mathematics by ML Agrawal, class 9. Here's the chapter 2, compound interest. 2.1 already done in the earlier video. 2.2, the first part is done. Second part. Some questions are there in which it is asked the sum, means principal value, not amount. Amount is given, but principal value is asked. In some questions the rate is asked. In other question the number of years, means how the time is asked. तो कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सम पूछा जा रहा है. Find the sum. There is a question number 11. Here given the rate of interest is 4%, but it is semi-annually. ये लिख दिया जाता है जिससे पता चल जाए कि ये क्या है, एनुअली है और सेमी एनुअली और क्वार्टरली. स्पेशली इन योर कोर्स द एनुअली और सेमी एनुअली. अमाउंट इज ₹7803. दिस इज द अमाउंट, इट इज गिवन आफ्टर 1 year. द अमाउंट इज ₹7803 आफ्टर 1 year. और you have to find the principal amount, means sum you have to find. So just if it is semi-annually, in the earlier video, in my previous video, I explained what you will do in the semi-annually case or half-yearly case. First of all, you divide the rate of interest by 2. This is called the conversion period, क्योंकि after 1 year amount दिया गया है और एक साल में, 1 year में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 half years, 6 month पे होगा ना, क्योंकि ये semi-annually लिखा हुआ है. इसका मतलब कि हर 6 month पे इंटरेस्ट लग रहा है. तो तुम्हें क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट एवरी 6 month एंड दिस इज गिवन पर एनम. ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया होता है ये पर एनम दिया गया होता है. सेमी एनुअली इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन. तो इसको हम जस्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज 2%. और नंबर ऑफ ईयर जो है 1 year में कितने हाफ ईयर होंगे, यू मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि एक साल में 2 ही होंगे, 2 साल में 4 होंगे, 4 years में 8 होंगे. तो 2 into 1 दैट इज 2 half years. यूज द फॉर्मूला A is equal to P under 1 plus R by 100 to the power n. Put the values, and after putting the values you will get this simplification, and after simplification you will get ₹7500 is the principal value. तो ये मिल जाएगा और इसी को पूछा जा रहा है कि फाइंड द सम. तो जब कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा ही कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर एक डिजिट भी गलत हुई तो आंसर नहीं आएगा. तो यू मस्ट कंसंट्रेट एट द टाइम ऑफ द डूइंग कैलकुलेशन. ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच द प्रिंसिपल इज आस्क्ड. अब हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं. The next question is find the rate. कहीं कहीं पे रेट भी पूछा जाता है, जैसे 11, 12, 13, 14 इन सब में क्या है कि यू हैव टू फाइंड द
sum means principal amount. But 15, 16, 17 in which it is asked the rate. How to find the rate? 15th question है, at what rate percent per annum compound interest will rupees 2304 amounts to rupees 2500 in 2 years. At what rate of percent? मतलब ये जो सम है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 2 साल बाद इतना हो जाता है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इन हाउ मीन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो सबसे पहले यू विल यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला ए and in place of A 2500, in place of P 2304, 1 plus R is not known, ऐसे लिखें और यहां 2 लिखें. क्लियर? जब ये हो जाएगा, because you cannot solve this part in the bracket, क्योंकि अब ये तो R है, दिया तो है नहीं, यही आपको निकालना है. स्क्वायर लगा है, क्यूब भी हो सकता है, इन 3 years भी हो सकता है, तो बट इट इज स्क्वायर. ओके, नो प्रॉब्लम. ओनली द 2 quantities आर गिवन. सो टेक दिस क्वांटिटी इन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसको डिवाइड करें. इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 होल स्क्वायर. यू डोंट एक्सपैंड दिस वन. क्यों? अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो काफी लंबा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. What is the method to solve it? Just you divide it. मतलब जहां तक डिवाइड कर सकते हो वहां तक डिवाइड करें, और आफ्टर डिवीजन you will get a number which is the perfect square number, which will be the perfect square. क्यों? जब यहाँ पे पावर 2 लिखी है तो वहां पे भी स्क्वायर नंबर ही आएगा. अगर यहाँ पावर 3 लिखी होती तो वो क्यूब नंबर आता. दिस इज द मेथड टू सॉल्व. तो इसको हम डिवाइड करें, किससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 2 से. तो 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 and 0. ओके. 4 then 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 and 2 2. यानी कि फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको सीधे 4 से ही डिवाइड कर देते हैं. तो 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, 4 5 20, 4 7 and 4 6. Okay, this is equal to 1 plus R by 100 to the power 2. इस further you cannot simplify. अब इसको नहीं कर सकते, you cannot divide it. है? अब और देखिए, मालूम भी हो गया, 625 is the square of 25, 576 is the square of 24. तो ये पता, ये होना ही होना है. This is true. So it is there. You write in square form. You can write like this. Or in the indices. जब तुमने क्लास 8 में indices पढ़ा होगा, तो that rule. If the powers are equal, then A is equal to B. उसी केस में अगर पावर इक्वल होगा तो बेसेस आर इक्वल. इफ बेसेस आर इक्वल देन पावर्स विल बी इक्वल. तो हियर द पावर्स आर इक्वल, सो यू कैन राइट बाय दिस थ्योरम. मतलब ये कैंसिल हो सकता है ऐसे. एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट. इज इजी नाउ. अब ये इजी हो गया कि नहीं? तो ये आ गया हमारा 1 प्लस आर बाई 100, 25 by 24. साइड को चेंज कर दिया इधर से उधर. साइन नहीं चेंज हो रहा, ओनली साइड्स आर चेंज. तो R by 100 minus 1 and then 1 by 24 R by 100. So R is equal to 100 by 24 R 4 6 and 4 25. So R is equal to 25 by 6%. This is the answer. So by this way you can get the solution if R is asking. तो इस मेथड को ध्यान दीजिएगा इस यहां पे
कि जो भी नंबर आएगा वो मतलब कैंसिल होके सिंप्लीफाई होके स्क्वायर नंबर होगा। कब? जब इधर पावर 2 होगी, जब इधर पावर 3 होगी तो यहाँ पे क्यूब नंबर बनेगा, और जब पावर 4 होगी तो 4 पावर वाला नंबर, मतलब दैट इज डिपेंड्स ऑन द पावर ऑन द राइट हैंड साइड। Now the third one, finding the number of years. अब किसी किसी में टाइम पूछता है तो ये हम बता देते हैं। व्हाट रेट परसेंट हो गया, सम हो गया, इन व्हाट टाइम। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा ये देखने में समय लग जाता है। इन व्हाट टाइम विल रुपीज 15625 amounts to 17576 amounts to 17576 at 4% compound interest per annum at 4%। यहां पे देखिए ये परसेंट दिया है, आस्किंग द नंबर ऑफ इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स द सम, मतलब ये प्रिंसिपल इतना हो जाएगा at the rate of 4%। तो अगेन द सेम फॉर्मूला, a is equal to p 1 plus r by 100 to the power n। तो a means, p means is into 1 plus 4 by 100 power n। अगर यहीं पे if it is written suppose in the question सेमी एनुअली, तो आप सेमी एनुअली वाला रूल लगा देते, कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब रेट को डिवाइड कर देते बाय 2 और नंबर ऑफ इयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, एंड देन यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब अगेन यू हैव टू फाइंड द n, तो ये तो हम n को पूरा तो एक्सपेंड कर नहीं सकते, तो यू कैन टेक दिस वैल्यू इन दिस साइड। भाई इसको तो ले नहीं जा सकते बिकॉज इट इज द पावर हैविंग द पावर n, तो इसको नहीं ले जाना। नाउ यू कैन राइट 17576 डिवाइडेड बाय 625 is equal to, simplify it, पूरा सिंप्लीफाई करना है। In the previous question I told you that is the, ये 1 plus r by 100 था and the power was 2, that in the previous question। यहां पे उल्टा ये दिया गया है, पावर इज नॉट गिवन। अब यानी कि हमको when you solve it, ये को चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, किसी का भी हो, बट द बेस विल बी 26/25, यानी ये किसी 26 और 25 का ही स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, बट इट विल नॉट बी द 27, 28, 29 लाइक दिस। मतलब ये किसी और नंबर का हो ही नहीं सकता, दैट ओनली द नंबर विच यू गेट द पावर ऑफ, दैट इज 26/25 हियर। अब ये अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या ये कटेगा? बिकॉज इट इज 6, इट इज 5, इट विल नॉट बी रिड्यूस्ड, सिंप्लीफाई, यानी कि ये 26 का कोई स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, तो हाउ विल यू फाइंड इट? यू कैन फाइंड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ द लॉन्ग, मतलब ये जो निकाला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, दैट इज यू कैन राइट लाइक दिस, मतलब यो क्यूब निकालना है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं निकालना है, तो हाउ विल यू 2 से करें, 2 8 16, 1 2 7 1 2 8 and 2 8, then again 2 4 2 3 2 9 2 4, then 2 again, 2 2s, 2 1s, 2 9s, 2 7s। ओके, देन 2 से तो अब डिवाइड नहीं होगा, अब ये किसी और से डिवाइड होगा,
13 से करके देखिए, 13 वन ज़ा 13 सिक्स ज़ा and 13 nines are. Okay, then again 13. Okay, this is the complete 13 ones are. अब ये देख सकते हैं 13 का क्यूब है और 2 का क्यूब है, मींस 26 का क्यूब. इट इज द क्यूब ऑफ 26. 13 into 2 26, 13 into 2 26, 13 into 2 26. Similarly you will get the cube of 25 also. इसको भी ऐसे करेंगे तो क्यूब ऑफ 25 ही मिलेगा. And then it is 26 by 25 whole power n, and bases are equal. A to the power n is equal to A to the power, bases are equal, so the powers will be equal. So you can write here 3 is equal to n, or n is equal to 3 years. So by this way the sum you can get rate and number of years, कुछ भी निकाल सकते हैं. Now in the next video, I'll tell some more questions based on the compound interest. So just you watch the channel and watch the video till the end. Thank you.